جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. دوستو آج ہم استاد مرزا عامر بیگ کے ساتھ سکھر میں جو ہے وہ ناہید خان کی چھت پر شو کر رہے ہیں. استاد مرزا عامر بیگ کافی عرصے سے ہمارے دلوں میں راج کرتے ہیں اور ناہید خان ہوا، لالا، ہمارے سراج بھائی جو ان کے خلیفہ ہے، ہمارے سکھر میں ان کی اپنی چھتیں ہیں جن پہ وہ شوق بھی کرتے اور کبوتر بھی ان کو دیتے ہیں اور بناتے بھی ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ سکھر کی گرمی میں کبوتر شام کی باتیں کرنا ایک انہونی بات ہوتی تھی. استاد مرزا عامر بیگ جب آئے یہاں پر، لوگوں کو شعور دیا، ایک امیج دیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں. میں آج اس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہوں نے شوق کے کبوتر پروری میں ایک بہت بڑا مقام بھی حاصل کیا. اپنی شاگردوں کی چھتوں پر اپنے چیمپئن بنے. ملتان سے رستم ملتان کا ان کے پاس ٹائٹل موجود ہے. تو آئیے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے یہاں پر آنا، اپنی چھتوں کا وزٹ کرنا، کمی پیشی بتانا دوستوں کو. تو میں چلوں گا ابھی. پہلے تو میں دوستوں کو آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پر آئے ہوئے یہاں پر مہمان. ناہید خان کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ تو ہماری جان اپنا اعجاز مہر صاحب، اللہ پاک خوش رکھے ان کو. کیسے ہیں اعجاز؟ فرسٹ کلاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سدا خوش رہو. یہاں پر یہ چھت کا ویوز ہے جو ناہید کا ہے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. کیسے استاد جی؟ یہ اپنی چھت ہے جی، اس کے اندر کیا یہیں آ کے ٹھہرنا ہوتا ہے. ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا تو یہ. وعلیکم السلام امان بھائی. وعلیکم السلام. جی جی ایسے ہی ہے جی. اور یہ لالا بیٹھے ہوئے ہمارے، اور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. وہاں پر کامران بیٹھے ہوئے. کامران. ہاں جی استاد جی ماشاءاللہ. تو پہلے جو آپ نے یہاں پر کچھ شوق دیکھا تھا ناہید کی چھت پر، کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اب کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ 5-6 سال کی بات ہے جب بات ہوئی تھی، فرسٹ ٹائم ہم آئے تھے. ہاں جی ویسے ہی ہے. تو کبوتروں کا ذرا وہ مقصد سائز وغیرہ صحیح نہیں تھا، اوور تھا. وہی میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی. میں نے کہا تھوڑا سا کبوتر ٹھیک کرو گے تو شام تک یہاں پہ بھی اڑیں گے، کیوں نہیں اڑیں گے. ایسی بات ہے. تو وہ مقصد ایک چیز نہیں جہاں پہ ہوئی ہوتی تو اس وہاں پہ پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ کیسے ہوگا. یہ ایسے ہی ہے. ہوتا تو محنت صحیح ہے، اندازے ہوتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. باقی کوئی اس کا کبوتر بازی یا کوئی ولی تو ہے نہیں. ایسے ہی ہے. یہ سب کے اندازے ہیں. جس کے زیادہ اندازے صحیح ہوتے ہیں وہ زیادہ قابل لوگوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے کم ہوتے ہیں کم نہیں ہو جاتا ہے. ایسے ہی بات ہے. ساری ایک جیسی. بالکل. تو یہ جب سے گرمی ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ پڑتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے، ملتان میں بھی پڑتی ہے، تو اس ہائٹ تک پہنچنا کبوتر کی جہاں تک ٹائم کبوتر کرتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے کبوتر کو ٹھیک کرنا. ہاں جی. آپ جب اس کے پوائنٹ صحیح کرتے ہیں تو وہ چاہے جونسر ہو، چاہے وہ ٹیڈی ہو، چاہے وہ لال اکھا ہو، وہ سب جائیں گے اس ہائٹ پہ. بات یہ ہے کہ آپ کبوتر کے پوائنٹس ٹھیک کریں گے. نسل کی کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں کوئی اچھا نسل کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سب بنے ہوئے ہیں. اچھا. یہ کوئی بھی ایک پیور بریڈ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے لاجک سے بات کرنا چاہے، جی ہاں، پیور بریڈ تو وہ تھی نا اگر ماں کے پیٹ سے لے کے آتے یا سٹارٹ سے وہ چلے آتے، کوئی اور رنگ نہ نکالتے. جی ہاں. آپ یہ دیکھیں کہ ہلکے پھیکا رنگ نکل آنا، تیز رنگ نکل آنا، کوئی بدرنگا سا نکل آنا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ جو اب انگریزوں کے دیکھیں انہوں نے جو پیڈگری والے برڈز بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر کلر نہیں اور نکلے گا کبھی بھی. ایسے ہی ہے. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک کلر میکنگ ہے، جی ہاں، ایک ہے کیا کہنا چاہیے پوائنٹس وغیرہ آپ نے میک جس میں کیے ہوئے. ایسے ہی ہے. تو ہمارا کام، ہمیں شوق ہے اڑانے کا، ہمیں خوبصورتی سے زیادہ تعلق ہوتا ہے پوائنٹ سے. تو اب مقصد ہے کہ کوئی کمنگر، ٹیڈی، گولڈن، جوسرے جو بھی ہے، مقصد ہے کہ بلڈ لائن اچھی ہو، بلڈ لائن اچھی ہو، کلر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی میکنگ اچھی ہو، آپ کو پتا ہو کہ کیا میں نے بنانا ہے، کس لیے بنانا ہے. صحیح بات. دیکھیں نا ایک میزائل بناتا ہے وہ 1000 میل پہ مار کر رہا ہے، ایک میزائل بناتے ہیں
वो 10 किलोमीटर के ऊपर या 50 किलोमीटर मार कर रहा होता है, वो 1000 किलोमीटर पे नहीं जाता। जी हाँ, ऐसे ही जो रेस वाले बर्ड्स हैं उसमें भी 3 कैटेगरी हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। वो तीनों में डिफरेंस है, यही इनमें फर्क है। ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है कि जी कोई बंदा सीख नहीं सकता, बड़ा इजी है। मकसद है कि जैसे आपने आप पॉजिटिव होंगे ना जब, जी 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 देखें पहली चीज है पॉजिटिव होना। जी हाँ, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है, बंदा नहीं दे सकता। सही बात है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वही मेहरबान होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी के लिए क्या दरकार होता है? मकसद है कि सबसे पहली चीज आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, क्या बात है, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, हाँ जी। पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके अंदर साजिश या मुनाफकत का अंसर नहीं होना चाहिए। आप बनाएंगे, जब आप कबूतर उड़ेंगे, जब वो रिकॉर्ड पर्चे में आएंगे तो मानना पड़ेगा सबको, जी हाँ, ऐसे ही है। मजबूरन मानना पड़ेगा। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना जोर लगाएं अपने कबूतर बनाने पे, उन पे मेहनत करने पे। उनका जब रिजल्ट आएगा, जो मर्जी जितना मर्जी मेरा मुखालिफ बंदा भी होगा वो नहीं बोलेगा, वो बोल नहीं सकता। उसके आपने बिल्कुल जबान को ताला लगा दिया ना अपना रिजल्ट कार्ड देके। एक्चुअल तो है तो रिजल्ट कार्ड इसका। आजकल मुखालिफ को इज्जत नहीं दी जा रही है ना। नहीं, ये गलत बात है। सारे अगर मुखालिफ नहीं होगा ये शौक खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुखालिफ के सिर पे तो शौक है ये। अगर आप इसकी बारीकी में जाएंगे ना, अगर आपका ओपोनेंट नहीं है, मुकाबले वाला नहीं है, तो आप किससे मुकाबला करो? हवा से। ऐसे ही है, तो जो हमारा ओपोनेंट है सबसे ज्यादा काबिल इज्जत तो वही है। ऐसे ही है। और हार जीत दो, इसमें 2 लड़ेंगे, एक नहीं जीतना है। सही बात है। मैं हार गया तो कोई बात नहीं, मुझे चाहिए उसे मुबारकबाद है। नेक्स्ट ईयर हाँ जी, जब तक जिंदा है फिर मुकाबला चलता रहेगा। ऐसे ही ऐसे ही है। जिस्तजू जिंदा रहेगी तो कबूतरबाजी भी जिंदा रहेगी, ऐसे या ही कोई भी फील्ड हो। जिस चीज की जिस्तजू खत्म हो जाती है जिस फील्ड में भी, वो चीज या वो खेल तबाह हो जाता है। ठीक हो गया। हमारे मुसीबत ये है कि हम लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको पैसा और दे, बहुत बहुत अमीर लोग आ गए हैं। अब वो शॉर्टकट भी कुछ लोग मादरत के साथ, कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि बस फटाफट हम फर्स्ट आ जाएं। तो ये तो उसकी शॉर्टकट के पीछे जो असरात होते हैं, साजिशें होती हैं, उसका जो तो बदनामी देखें आप। आजकल के हालात बड़े खराब हैं लोगों के। इस मामले में मैं बहुत एहतियात करता हूँ। हाँ देखिए, स्ट्रीट फायर इसीलिए स्ट्रीट फायर जीत जो होती है वो सबको नजर भी आती है। साजिशी अनासर हमेशा हारते रहते हैं। हारते अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं है ना। हाँ जी, ये तो है। वक्ती उनको उछाल मिलता है, ऊंचाई मिलती है, लेकिन वो धड़म से गिरते हैं। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कह दिया है कि सच ने जीतना है, तो झूठा कभी नहीं जीत सकता। सच ही ऐसे जीतना है। ऐसे ही बात है। इसके अंदर परेशानी की कोई बात ही नहीं। एक मिनट आए तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। मेरे को सिस्टम बनाने देना। लोग आपको बड़ी गहराई से देख रहे हैं इस टाइम ना। बैठे इधर आए, इधर आए जी। जी बिल्कुल साहब। ये हाथ की असेसमेंट इसमें कबूतर में फीलिंग है। मेरे जो अपना अच्छा अंदाजा या आइडिया या जो मेरा तजर्बा है, मुझे मैं ये कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कौन सा नौजुबिल्ला इसका वली तो नहीं हूँ। जी जी, मैं कहता हूँ ये आपके एक एहसास है हाथ का, जी हाँ, कि वो कबूतर आते ही ना आपको अपने साथ मुतवज्जा कर लेता है। एक कबूतर आपको मुतवज्जा ही नहीं करता है। सही है। तो जो आपको थोड़ा मुतवज्जा करेगा उसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे। जी हाँ, जो कबूतर आपको मुतवज्जा ही नहीं करेगा उसको आप इतना गौर से देखोगे ही नहीं। ऐसी बात है। नहीं, आपके हाथ में जो फर्ज करें ये कबूतर है, आपने बोला जी इसमें ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें मुझे माड़ी लग रही हैं मेरे हिसाब से। मगर ये परफेक्ट भी कबूतर होता है, मालिक को पता होता है, क्योंकि मालिक ने ही इसका लेबार्टी ली होती है आसमान की। वो प्रैक्टिकल तो उसी ने किया। जी हाँ। तो बहरहाल जी ये तो लंबा चढ़ा सिलसिला है। आपके पास तो बड़े दरिया है इसके, क्या कहते हैं कि आज भी सीखता हूँ। जी जी बिल्कुल, ये आज भी अगर कोई अच्छा मुझे समझ में आने वाला बंदा मिलता है ना, जी हाँ, या मैं उसकी बात सुनता हूँ, तो आप यकीन करेंगे मकसद है कि अब इस फील्ड में है तो अब वो बंदा जिस तरह कोई चीज़ होती है वो किसी कसम खा लेता है। तो मैं कहता हूँ ये कबूतरों का शौक है मुझे, मैं इनकी कसम खा के कह सकता हूँ कि मुझे आज भी सीखने का शौक है। अगर किसी की बात में पॉजिटिव बात होगी, लॉजिक वाली, तो मैं ज़रूर उसकी महफिल में बैठना पसंद करता हूँ, उससे सीखता हूँ। और जिससे मैंने कुछ भी सीखा वो मेरा उस्ताद ही है। ख्वाब वो शागिर्दी है। तो आपने दुनिया में एक पगड़ी बांध के जो बनाया था वो तो नाम दिया होता है ना। आप जिससे जरा सी भी चीज सीखते हैं ना वो भी आपका उस्ताद है। ये और एक आपको उसको उस्ताद समझना चाहिए कि ये चीज मैंने उस बंदे से सीखी है। ये उस्ताद के सुनहरी लफ्ज हैं, आप याद रखना। ये उस्ताद अब ये उस्ताद मिर्जा आमिर के सुनहरी लफ्ज हैं कि इल्म कहीं से भी आप हासिल करें और ले लें। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया था। अच्छा, जब मैं उनका शागिर्द हुआ, उन्होंने कहा यार जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया, अगर तुझे ज्यादा शौक है ना
तो जाओ जाके उस्तादों की जूतियां सीधी करो, बिल्कुल यही अल्फाज थे। सही बात है। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि जी जो आप ये कबूतर वगैरह उड़ाते हैं ये आपके अपने उस्ताद का दाना पानी है? नहीं नहीं, आपके कामयाबी के पीछे राज भी यही है मेरे ख्याल में। हाँ कह सकते हैं आप। मैं मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, कहने लगा यार मैंने अपने उस्ताद से भी सीखा और मैंने दूसरे उस्तादों की भी जूतियां सीधी करी जिनको मैं समझता, मेरी समझ में था कि भी ये कोई अच्छी अक्ल की बात कर रहा है। तो कह रहा मैं उनके साथ ही बैठता था, उनसे भी सीखता था। कह रहा ये इल्म है जहाँ से मिले ले लो। सही बात है। ये किसी घर का मुताज या किसी घर में बंद नहीं है। इल्म वही चीज है जो कहीं बंद नहीं हो सकती। आजकल उस्ताद यंग जनरेशन जैसे आगे आ रही है, देखें आप जैसे पंजाब में बड़े बड़े नाम पैदा हो रहे माशाल्लाह हैं, कबूतर और कबूतर उड़ा रहे हैं और शाम कबूतर बिठा रहे हैं, तो उन्होंने भी ज़ाहिर है बड़ों से सीखा है। ऐसे ही है ना, मेरे माँ के पेट में कोई नहीं सीखा है। ज़ाहिर है उस्तादी देना, आप उस्ताद उसको पकड़े कम से कम चार अक्षर आने चाहिए उसको। आप बिल्कुल अपना उस्ताद करने से पहले आप अपने उस्ताद के साथ रहें, बैठे उठें, बातचीत करें। अगर आपका दिमाग मुतमईन हो, दिल मुतमईन हो, तब आप शागिर्द हो। सही बात है। आप आज शागिर्द हो रहे हैं, कल उसको छोड़ रहे हैं, दूसरे के हो रहे हैं, आपकी खुद की इज्जत नहीं रहती। ऐसा ही है कि यार ये बंदे के तो भाई रोजा काम है उस्ताद बदलना, पार्टियां ऐसे बदलना, बंदे- पार्टियां बदलना। पार्टी और चीज है। अच्छा। उस्ताद खास तौर पे, क्या बात है। उस्ताद को जब सोच समझ के करे, आप सोच समझ के एक ही करे, उसी मतलब उस्ताद को साल बाद करना है। सही बात। आप उससे सवाल जवाब करें, अगर वो आपको मुतमईन करता है आप उसके शागिर्द हो, नहीं करता आप मत हो, तो पाबंदी थोड़ी है। क्या बात है जी। आपका जहाँ ज़हन मुतमईन हो वहाँ शागिर्द हो। काफी उस्तादों दोस्तों के सवालात इतनी भरमार है, मैं आपसे नहीं कर रहा क्योंकि आपके लोग बात सुन रहे हैं इस टाइम, तो मैं एक्सक्यूज में बाद में आपको कमेंट्स करूंगा। दोस्तों, उस्ताद की बात जो आपने सुनी है कि आपकी नीयत अच्छी हो। सबसे पहले कबूतर तो सबके पास अच्छे हैं, सबके पास ही है, ऐसी बात है उस्ताद जी। आपने देखा होगा कि हर दुनिया का कोना कोना आपने घूमा है। पहले आप कबूतरों का भी शौक करवाएं दोस्तों को कि ये कबूतर देखें जी, उस्ताद के हाथ में है। ये जी नाहिद खान की छत पर इस शहजादे ने ये कबूतर, जो एजाज महर साहब हैं, तो उनसे दुबई से आए हुए ये कबूतर हैं, तो इनका भी आप शौक करें। जी जी सैयद मुनीर शाह साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है। शाह जी वो शाह जी अब नाहिद ने सियालकोट ही निकालना शुरू किया। शाह जी आ जाओ। ये जो पहला कबूतर देखा था ना, वो और ये एक डिजाइन के है पॉइंट्स वाला। वो जो कबूतर मैंने आपको दिया ना वो डिफरेंट है, वो मजबूती में बहुत है। ये उड़ार में था जो कबूतर मैंने आपको बताया था ना, ये जो हड्डी है ना, ये तो एक वो डायरेक्ट हड्डी है ना, कश्ती नुमा हड्डी, इसी ने जाना ऊपर। और यही वो बाबा और वो जो करसन है वो मुली यूं रख रहे थे, ये वो इतनी बड़ी है वो कुछ लोग ना वैसे चिढ़ जाते हैं ना, मैं बात करूंगा मेरा को मुखालिफ मुझसे चिढ़ जाएगी, ये आमिर कर रहा है मुखालफत करनी है, वो एक और चीज है। वो गरीब कुछ बातें सही नहीं कर रहा था, वो सारी मिट्टी गिर जाती है। सर जी मतलब मैं हमारे गर्मी तो पड़ती है, मुल्तान में भी पड़ती है, यहाँ भी पड़ती है। यहाँ पे आपके हमारे से भी मैं कहता हूँ कुछ हमारे प्यारे दोस्त है इशफाक नजीर साहब गुजरावाला से, हाँ इशफाक साहब, ठीक है ना, उनका एक सवाल आया है, वो इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं कि डिग्री में कबूतर उड़ाने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मिर्जा साहब से सवाल करें। क्या मतलब है? मकसद है कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल करें, अपना ख्याल करें, बैठने की जगह का ख्याल करें, तो बहुत सारी चीजें शामिल होगी ना। मैंने कहा स्पेसिफिक बात करें ना मुझसे। अच्छा जी इशफाक साहब, ये तो स्पेसिफिक बात करें, बात हो गई। बात करना, हाँ, ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि मैं तो अपना सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, हम ही ना मरे पड़े हो कहीं। हाँ, एहतियाती तदाबीर हो या फिर जो है ना वो होता है कि अपने कबूतरों का दाना पानी किस चीज का होना चाहिए। अरे अपना तो होना चाहिए। बंदा ठीक होगा तो कबूतर ठीक रखेगा। जी बलोच साहब, बड़ी मेहरबानी जी। सैयद मुनीर शाह साहब की तरफ से सबको सलाम वालेकुम और सबके सलाम जी, सबके सब। राजा गुलाम असगर मेरा भाई देख रहा है रावलपिंडी से, अमान भाई, अक्सर कबूतरों में ना और
हिदायत उल्लाह पिताफी साहब, हड्डी हड्डी सब की एक हड्डी शिराज अहमद जतोई साहब, जो मुझे लगा इमरान बादल हीरो मेरा भाई। नहीं, मैं अंदाजा कर रहा हूँ। ये उस्ताद जी ये कबूतर जो है इसको चेक करें, ये बहुत उड़ा हुआ है वहाँ का, दुबई का। ठीक है, अब क्यों उड़ा हुआ है आप सभी देख रहे हो ना, देखो हाँ जी, फिर बाद में करते हैं इसको डिस्कस। ये अगर उड़ा हुआ है तो ज्यादा क्यों उड़ा हुआ है? हाँ ये उड़ा हुआ है तो ज्यादा क्यों उड़ा हुआ है? ये चीज ढूंढनी है ना, उनसे फर्क तभी पता लगेगा ना आपको कि यार इसकी हड्डी में फर्क है, जोड़ में फर्क है, पर में फर्क है, कंधे में फर्क है, गर्दन में फर्क है, इसकी कमर में फर्क है। परवाजी कबूतर में हाथ में जब आता है तो वो नजर भी आता है, उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज बताती है। साजी एक तो चीज होती है परवाज, जी हाँ, वो जाने का तो उसको वापसी जब तक वो आके ना घर बैठे पर्चे पे तो नहीं आता, उसका क्या फायदा? जी हाँ, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए ना। सही बात है। अशफाक भाई का जी वो आ गया कि स्पेसिफिक हाँ बताए कि ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग गर्मी में, बड़ी तेज गर्मी में, जैसे आम रूटीन में कबूतर पलटना चाहिए या नहीं चाहिए, गर्मी में पलटते हैं कबूतर आप लोग या नहीं पलटते? हम लोग पलट के उड़ाते अच्छा, हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी हर बंदे की अपनी मर्जी है, मैं पलट के उड़ाता हूँ कबूतर। अच्छा, उसके अंदर भी दो चीजें हैं। अब वो हालांकि मैं एक फैन हूँ पाकिस्तान के अंदर अकमल खान का। जी जी, मैं ज़हनी तौर पे या दिली तौर पे मैं उसका बड़ा भाई है मेरा, वो बड़ा अच्छा, ये पिपला वाले, पिपला वाले। अच्छा, मेरा उनका ताल्लुक बना था जब मोने की पहला साल बादी उड़ी थी ना, जी हाँ, तो मेरी पहले फोन पे थी, उस दिन मैं उनसे मिला था, वहीं था उनके पास ही। अच्छा, तो मैं वैसे कबूतरबाजी में ना और उनके मेहनत पे मैं उस बंदे का वैसे फैन हूँ। क्या बात है। तो जब मैं आया था लोगों ने पूछा भी, तो दोस्त है मेरे लाहौर में बहुत ज्यादा दोस्त है मेरे। मैंने कहा यार वो जितनी जब तुम मेहनत करोगे जब उसे जीतोगे। सही बात है। तो बाकी अरूज जवाल तो अल्लाह ने देना है यार, एक चीज को अरूज आएगा तो जवाल आएगा ना, जिस बेचारे को रह गई जवाल उसको क्या जवाल होगा? नहीं वो तो कि कबूतर आप जाते हुए संभालते पलटते हैं या आते हुए पलटते हैं? नहीं, जाते हुए जाते हुए जाते हुए नहीं, थोड़ा सा पहले घंटा पहले पलटते। मकसद जाते वक्त का कहना होता है ना। क्योंकि अच्छा, जब ये टेम्परेचर कम होता है ना, जब हवा में नमी कम होती है, जी हाँ, उस टाइम ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग बाजरा देते ही नहीं उड़ार में, लाहौर वाले खासतौर डरते हैं, नहीं देते अक्सर ये। हम लोग बाजरा देते हैं। अच्छा, तो बाजरे के अंदर ये होता है कि जिन दिनों गर्मी पड़ रही होती है, बाजरे का कोई दाना ऊपर वाले पोर्ट में या निचले पोर्ट में रह सकता है। अच्छा, उल्टाते हम इस नजरिए से कि कोई दाना वगैरह ना बचा हो, अच्छा, वो निकल जाए। अच्छा, क्योंकि वो दो दाने या एक दाना भी रह गया ना, वो कबूतर जो आके खराब होके गिरते हैं ना। गर्मी के टेम्परेचर जहाँ जहाँ नमी नहीं है, गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ गर्मी की बात कर जी, रहा हूँ। जी, ऐसे और ही है। गर्मी की बात कर रहा हूँ आपको 45 डिग्री से ऊपर ऊपर, ऊपर, क्योंकि हम लोगों के जब तक 45 नहीं पड़ता हम गर्मी नहीं मानते। जी जी, हम मुल्तान में गर्मी काउंट शुरू करते हैं जब 45 शुरू हो जाता है। है। 45 से नीचे वाले को हम टेम्परेचर को इतनी गर्मी में नहीं काउंट करते। ऐसे ही है। तो उस टाइम ना ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम उड़ा के उसको पलटा के उड़ाते हैं कबूतर को, अच्छा, ताकि वो जो कबूतर साफ हुआ होगा ना वो फ्रेश आके बैठेगा। ऐसे ही है। इस चीज को भी नोट कर लीजिए। एक कबूतर बुलंदी भी करे और आके बिगड़ के बैठे तो इसका मतलब उसके पोट में दाना है। दाना है। वो आपको बैठते साथ ही बताएगा, गर्दन यूं करेगा, अंदर थोड़ी सी फूल जैसे पर फुलाएगा, इस टाइप का हो जाएगा वो। अच्छा, अभी सवालात पे सवालात है, वो अच्छा सवाल जो होता है मुझे समझ में आ रहा है। अब ये है कि अगर आपने कबूतर पलटाया है जाते हुए, हाँ जी यही बात है कि पलटाया तो उसके बाद खुराक लगा के उड़ाते हैं या खाली पेट उड़ाते हैं? भाई इतनी गर्मी में खुराक ला के मजीद कैसे उड़ाएंगे? अच्छा, वो उड़ा सकते हैं आप, अगर आप कबूतर को वैसे बनाएंगे, लेकिन खुराक के अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान करना पड़ेगा कि वो खुराक उसकी घंटे आधे घंटे के अंदर चल पड़े। अच्छा, तब तो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, जो कबूतर का जो आसमान में उड़ेगा खुराक देकर, तो क्या वो उसकी गर्मी होगी ना, आप देखें ना गर्मी में आप कितना खाते हैं? हाँ जी, पीते ज्यादा है या खाते ज्यादा है? जब गर्मियां आएंगी हाँ तो पीते ही ज्यादा है। पानी हम लोग या हाँ। लिक्विड ज्यादा पीते हैं ना, खाने को भी हमारे सामने बड़ा होता है। सही है। सर्दियों में अगर हम 3 रोटियां खाए थे तो उस समय 1 रोटी खानी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक्स हैं, वही जो इंसान की है वही इनकी है। ऐसे ही है। हर जिंदा चीज की एक ही लॉजिक है। ऐसे ही है। तो ये वो उस्ताद छुपा के रखे हैं और नजर कोठे पे चढ़ के बैठ जाए कि नहीं बतानी, वो ये लॉजिक की चीज है। आजकल बच्चे माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, फिर आजकल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है। आप देखें कि गोरे ने बहुत सारी चीजें उस पे इंटरनेट पे आपको दी हुई हैं कि कलर मेकिंग क्या है, पॉइंट्स मेकिंग क्या है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। आपने उसको कंबाइन करना है हर चीजों को।
ऐसे तब ही। आपका एक अपना फॉर्मूला बनेगा। ऐसा ही है। अब झंडी टाइम से पहले कबूतर को बादाम की खुराक देना बेहतर है कि नहीं? सर हम तो नहीं देते, जो देते हैं ये तो सवाल आप उनसे करें। अच्छा, सही बात है जी। आगे में 2 घंटे पहले दे सकते हैं, कितने? 2 घंटे पहले पलटा के दे सकते हैं, कितनी भी गर्मी हो, अच्छा, फ्रेश खुराक हो उसी टाइम बनाई हो, 2 घंटे कबूतर को पहले खाली करके उसको दे सकते हैं। ऐसा ही है। और जिन लोगों के कबूतर हिले हुए हैं वो गर्मी ये में नहीं, खुराक खा इधर के है। शाम तक उड़ते भी हैं। अंधेरे पहले हिलाना पड़ेगा ना, में। जी बिल्कुल, डायरेक्ट नहीं दे सकते, हलाने पड़ते हैं। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। ये आपको तैयार करने पड़ते हैं, ये आदत डालनी पड़ती है आपको फड़कों में। हाँ जी, ये नहीं कप वाले दिन उठा के आपने डाल दिया वो कबूतर ही उल्ट पुलट हो जाए। ऐसा ही है। ये 2 घंटे पहले वो ठीक कह रहे हैं, हम लोग अब 2 घंटे पहले पलटाते नहीं। हाँ जी, अगर हमने खुराक देनी तो फिर 2 घंटे पहले कम से कम पलटाने चाहिए। यहाँ पर कबूतर उड़ता है 6 घंटे या 7 घंटे गर्मी में, ठीक है। 48 से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। 6 या 7 घंटे उड़ता है। 10-12 घंटे तक कैसे ले जाएंगे कबूतर को? एक्सरसाइज, खुराक, अच्छा, या कोई ऐसा दाना पानी भी है जो? दाना पानी भी है। अच्छा आजकल दाने पानी ऐसे आ गए ना, अच्छा, कबूतर को पता 8-9 घंटे बाद लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। अमूमन तो हाँ यही फोन है। कर देते कबूतर को, अरे उड़े जा भाई, नीचे अच्छा, नहीं आना। अच्छा। नहीं, वापसी आना का शर्त है ना, वापसी आए नहीं आएगा तो जीतेगा आएगा। कैसा है? आएगा, वो होश ही बाद में आएगी ना, लेकिन अच्छा। मैं उड़ रहा था। अच्छा, आपका फिर काम होता है अगली फड़क में उसको संभालना। अच्छा, देखें आप लोगों की गेम है कुछ और इधर सिंध में, सक्खर में। जी हाँ, आपका वो कबूतर आपसे नहीं संभलता, आप अगले दिन और कबूतर डाल लेते उसी जगह। सही बात। हमने वही कबूतर उड़ाना होता वही कबूतर उड़ाना होता है, यही फन है ना, है। तो आपका वो अगर कबूतर पूरा ना हुआ तो आप कैसे उड़ा लोगे? ऐसे ही है। तो जिस दिन मैंने कहा था आपको ये काम शुरू करोगे तो यहाँ पे फर्क आना शुरू हो जाएगा रिजल्ट में लोगों के। जी बड़ी मेहरबानी जनाब, अगर जवाब दुरुस्त आया तो बड़ी मेहरबानी। एजाज भाई का बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल जी, अब एजाज भाई का कौन ख्याल नहीं रखेगा, मेरा भाई ऐसा ही है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी ये कबूतर जो आपके हाथ में है इसको आप क्या बोलते हैं? ये तो जी हमारे लिए तो टेडी है, बाकी पता नहीं क्या। अच्छा, आपके लिए टेडी है। इस पे थोड़ी रोशनी डालें एजाज भाई, ये क्या है आप आपको ज्यादा ब्रीफ बताएंगे? उस्ताद जी माशाल्लाह सीनियर है, वो बता रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। जी हाँ, उस्ताद जी जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे, माशाल्लाह वो सीनियर है। यार, जब जिसने senior बात कर रहा हो तो सुनना चाहिए। हर किसी का अपना अपना वो होता है, सही बात। आइडिया ही है। तो मैंने अभी पहले आपको कहा मेरे अपने आइडिया हो सकता है उसमें कोई गलत हो कोई सही हो, ये इलम है, ये डिस्कस उस्ताद से। को बड़ा कबूतर दिखाओ जिसके ऊपर चढ़ो। बड़ा कबूतर दिखाओ। अच्छी ये 88 है 41 है, बोतल पीछे बस क्योंकि ये चीज है 88, ये 88 से कन्वर्ट हुई है 41 में। हाँ जी, ये ज्यादातर मैंने 88 में जाते हैं देखी। 40 है, इसकी माँ हो सकता है। जी सिराज अहमद लाशारी साहब लाड़काना से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग के खलीफा हैं ये, लाड़काने से इनका ताल्लुक़ है। अली आ जाओ, लाइट की छत पे आ जाओ। यहाँ पर सब दोस्त, मेरा हीरो मेरा भाई। जी नरे क्या कैसे हैं जी? देर लगी आपको मेहरबान आते आते? अच्छा, टाइम लग गया। ये देखें जी, थोड़ा शौक करवाए ऐसे करके ना मेरे अली आले को। हाँ अली देख, क्या बात है, माशाल्लाह। जी जाहिद गुज्जर भाई बड़ी मेहरबानी। अली भाई दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, वो दोनों इसके बेटे हैं। ये हम लोगों का सबसे हाई लेवल का जोड़ा था और मादी अंडों से बंद हो गई, ये जोड़ा पहले ही मैं लेके आया। लेकिन इसमें कबूतर डला हुआ है यार, ये लाल से तो ये नहीं आने चाहिए, या तो ये भत्रों से आए हैं, क्योंकि चौधरी के कबूतरों में भत्रों में ये लाल छट्टी आते हैं, 7 नंबरों में आते थे। और एक दफा ये 7 नंबर माती थी, वो इतनी लाखी थी, मैं कहा चोशा पे टेडी है ना, वो 7 नंबर है, मैं पैंट जो लाखी है तो यार 7 नंबर ऐसे ही जाए।
जब ये गोगी बर्ड कबूतर ले गया ना इससे उन दिनों की बात। जी दोस्तों, क्या आप शौक देख रहे हमारे खलीफा नाहिद खान खोसो की छत से बराह रास्त आपको कबूतर में दिखा रहा हूँ। या तबाखनिया कीड़े यारी मादी मादी इसे हाँ दो ये जहाँ पे बच्चे उड़ाए थैंक यू मेरा भाई। निकालेगा ना वहाँ तक वो नहीं निकालेंगे, वो उनको जब तक कैसे लगे जी कबूतर आपको? अच्छा नहीं अभी तो ये उस्ताद जी यंग है, जब ये 2-2.5 नहीं साल के 1.5 साल के वो होंगे पैदाइशी ना। पॉइंट है। नहीं ब्रीडर नहीं है ना, ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं उड़ाने के लिए, सही है, मगर इनकी प्योरिटी उतनी ही है जितनी के बड़े कबूतरों की मैंने है, भी आपको यही बात लेकिन करी वो है। अपने बाप की तरह नहीं हो सकता। आप मेरी बात को दूसरे एंगल से सोच रहे हैं। बात नहीं यही है। नहीं, मैंने भी यही समझ किया। आ रही है कि जितना मैंने बड़ा ये ब्रीडर है वो नहीं मैंने कहा बनेंगे, ब्रीड के बच्चे जितने बड़े ये निकालेगा वो नहीं निकालेंगे। ऐसे ही है। मैंने यही बात की, यही बात आप कर रहे हो। हाँ जी। जी जी ऐसी बात है जी। उस्ताद जी बड़े टिप्स बता रहे थे आपको, अब शौक करवा रहे कबूतरों का। जी बड़ी मेहरबानी दोस्तों। गेम खेलने वाले का जीवन तो जब तक नहीं होगा चलेगा। अभी तो 14 जाके ले जाएंगे तो आगे बढ़ते यार भाई जी ये देखो जी कबूतर ये चैंपियन छत है जी। अभी हाल ही में इन्होंने जो है वो गुज़िश्ता गर्मियों में हमारी छत में ये विन किया था और रीजन में हीरो बने थे। उनकी छत का विजिट है दोस्तों। आपने शौक देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।